वो जो बच्चे जो डिपोर्ट हुए हैं वो क्यों डिपोर्ट हुए हैं ये आप सुन के हैरान हो जाओगे। ड्रेस मेरा पासपोर्ट ही देखा सिर्फ उन्होंने एंड उसके बाद वो उठ के चले गए। ऑब्वियसली आई फेल्ट लाइक दैट कि वो उठ के चले गए बिकॉज व्हाट हैपेंड। Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Adab, and if you're walking into this little space for the first time, this is me Nupur and I make videos about everything. So in this video what I'm gonna do is I'm gonna answer your queries which you left on my previous video itself, and if you haven't watched my previous video till now, go and watch it guys. That's my travel journey, my quarantine place, your quarantine question and queries, everything. That video has been included of all these parts. So in this video I'm gonna share my experience, what was asked from me, and the procedure through what I undergone and what I felt about the procedure and what were the documents which were required by me. This video includes all of the stuff which I think was according to my perception and which I think I saw in front of my eyes, and even some of the views are from my friends itself. So let's begin the video. Okay, so I'm gonna start with my journey and my experience. So first of all, in the previous video itself I told you that when I entered into terminal number 3, and there I was asked for only two documents, which was my passport and my ticket itself, and I showed them both of my documents and there was nothing beside that. And when I entered the boundaries there itself, I showed you that I was in the K queue, which was of Air Canada, and in that K queue when I was standing, so the officer over there, what was he asking was only, I guess, three documents which he asked from me. The first document was my ticket, the second document was my passport, and the third document was my travel support letter. Okay, so now my classes were hybrid, which includes both offline and offline procedure. So he didn't ask me much. I just showed him my travel letter and I showed him that these are the things and everything, and he was okay with that. He didn't stop me at any point of way. But if you have online classes, then you need fourth document, that is your schedule. Yes, you hear me right. If you have online classes, then you need four documents: passport, your ticket, your travel support, and apart from that your schedule. If you don't have your schedule, please make sure that you carry your schedule with you, because in case you don't, nobody is going to make you enter inside the airport, right? And after that I undergone my security check, and also there was a question regarding how many bags did you carried, and how many was your cabin luggage, how much was your check-in luggage. So yeah, let me tell you guys that yes, this is true that now because of corona the airlines is allowing only one bag of 23 kgs. That's yes, my friend, it's totally correct that now they are allowing only one bag of 23 kgs. And what I did, actually I had my flight, like the previous flight of mine was with Turkish Airlines, and there they were allowing me three bags. So I obviously had so much of stuff to carry, because I made my mind according with that. Like I had actually so much of stuff to carry with me. So what I did was I paid for the two bags. Yes, extra money for the two bags. First bag was free. For the second bag they charged me 6,000 rupees, and for the third bag it was 13,200, which I paid at the airport itself. And yes, I was good to go with that. And there are so many queries that do they allow 23 kgs, or above 23 kgs, do they mind anything with that? So let me tell you guys, there was no such problem like that. Even when I traveled, what happened was I was too curious and too nervous about the thing that they won't allow, like 23 kgs, even a single gram above 23 kgs. I was so worried about that. But when I saw at the airport the students who carried like 25 kgs in a single bag, there was no worries in that. They were allowing them. And what I did was I kept my weight under 23 kgs, which was like
20 to 600, something like that. I left 500 grams or 400 grams in each bag so that I don't face any problem at the airport. But when I saw at the airport that the students are carrying 25 kgs of weight in a single bag and still they're not facing any kind of issues or not making any sort of extra money, yes, I felt I did a mistake. But then I don't want you guys to make this mistake again like I did. So you can carry somewhat around 23 kgs or 500 or 700 grams above that, and yeah, there will no worries. There will be no worries upon that. And yes, there was one more question, that do they check your 7 kgs bag or not? So let me tell you guys, they don't weigh your 7 kgs back. What happens is, when you do your check-in procedure and you submit your 23 kgs of bags there at the airport itself, then what you do is you undergo through a safety procedure itself, where they do all your checking and stuff. And there, what you have to do is you have to put all your electronic gadgets and everything, whatever you're carrying, like electronic gadgets and every stuff like that, into the tray, like almost every stuff of your bag into the tray. And you have to keep your bag aside and your stuff aside, and then it goes through a safety procedure. And then when it's undergone, you get your bag and your stuff on the other side. When you also undergo through a safety procedure where they check your body, whether you're carrying some sort of liquid, some sort of cream, moisturizers, any sort of liquid, or any sort of electronic gadget in your pockets, something like that. So they do check with your safety also. And then once it's done, what they do is they give you your stuff. You can carry your stuff from there. So the basic point of mine is that your 7 kgs bag is not being weighed, so you can use that bag to store every kind of stuff which you want. Because when there is no way, when they don't weigh your bag, you can carry as much stuff as you can in your 7 kgs bag. You can carry 12 kgs also in your 7 kgs bag if you have that much of space. If you don't have, then it's good to go. But apart from putting your stuff into a 23 kgs bag which is being weighed, what you can do is you can use your 7 kgs of bag and put all your stuff which is left behind and you think you have to put. So you can put it into your 7 kgs of bag and make it of 12 kgs bag, because they don't weigh your 7 kgs or your handbag or the laptop bag you're carrying. Oh, there was one more question, that apart from a handbag and cabin luggage, can we carry our laptop bag or any sort of short bag with ourselves? Yes, you can. There are no worries, because they have been told you that you can carry your handbag and your cabin luggage. But apart from that, you can carry your laptop bag, because you can't keep your laptop in your purse or in your cabin luggage. You can keep your laptop over there. So what you can do is you can carry your laptops and your gadgets in your you can carry a laptop bag or something P2 bag which you can carry with yourself. Yes, you're good to go with that. So once I was into all this procedure and everything went so smooth, when I landed up into Toronto, everything was good. And when I landed into Toronto, what happened was my flight reached there around 5:30 in the morning. And after that, we were sent to some area where they kept the students into a single panel itself under the same roof. And what happened over there was students were being sent, like in the batch of 20 students, right? There were a batch of 20 students, and the batch of 20 students was sent one by one to the immigration department. Now, when the immigration department come, what happens is, first of all, they give you, don't make the mistake that I did. Actually, at the Delhi airport itself, they give you two documents. One is self-declaration form, which includes that you're not carrying any sort of gold or extra money or dairy products of your own kind and anything. That's a basic declaration form where you declare that what are the stuff that you're carrying and what are the stuff that you don't carry, right? And apart from that, they give you another form which includes like your place of quarantine, like where you're gonna stay, what is the procedure what you're gonna follow, and everything. That includes everything basically. So in case you don't get those forms at Delhi airport itself, you can ask for those forms from them, that give us those two forms which we require. And if they don't give you that from on the airport itself, what you can do is you can get it from your flights, right? Wherever flight you have booked, like Air Canada, Lufthansa, any of the flight, what you can do is you can ask for that form, that I need this form, self-declaration form, or this form, I need this form, please kindly give this form to me. Or either, apart from these two ways, if you don't get the form
form over there also. What you can do is when you land at Canada airport itself, just when you enter into the immigration department on the right side itself, the forms are available. What you can do is you can pick up the form from over there and you can fill it up. And once you fill that form, you enter into the Toronto airport, and what they do is at the first test itself they ask you certain questions regarding where are you planning to stay, आपका क्वारंटाइन प्लेस कहाँ पर है, आपका क्वारंटाइन प्लेस जो है उसका आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है कि आप यहाँ रहने वाले हो, या मतलब आपका प्रॉपर आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि ये आपने यहाँ पे अपार्टमेंट बुक किया हुआ है. एंड मुझसे उन्होंने एक्चुअली डॉक्यूमेंट नहीं मांगा था, पर लेकिन जो मेरे पहले जो इंसान थे उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे कि वो क्वारंटाइन प्लेस कहाँ कर रहे हैं, उसका प्रॉपर प्रूफ दिखाइए, आपको एयरपोर्ट से कौन पिकअप करेगा वहाँ आगे जाकर, और आपका साथ मतलब क्या क्या प्रोसीजर है, उनसे पूरे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे. लेकिन मुझसे उन्होंने वर्बली बस ये पूछा था कि आपके पास स्टडी परमिट है या आपको अभी लेना है. एंड उसके अलावा उन्होंने मुझसे 2-3 चीज़ें पूछी थी कि आप कहाँ पर स्टे करने वाले हैं, तो मैंने कहा था कि मेरे कॉलेज का ही अकोमोडेशन मुझे प्रोवाइड हो रहा है. एंड उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या वो आपको ग्रॉसरीज देंगे, तो मेरा कॉलेज मुझे ग्रॉसरीज दे रहा था, तो मैंने कह दिया कि हाँ मुझे देंगे. बस इतना ही हुआ. उसके बाद उन्होंने मेरे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे दे रोट अ नंबर अपॉन माई सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, एंड व्हाट दे डिड वाज द नंबर वाज मेंशन्ड 11. सो व्हाट आई डिड वाज once you get the number you have to go straight into the immigration counter number 2, where what you have to do is you have to wait for your turn, right? And there is a zigzag way which you have to undergo, and then there are certain counters over there like 12 to 13 counters over there, and हर काउंटर पे आपसे अलग से तरीके के सवाल पूछे जाएंगे. एंड कंसीडर योरसेल्फ लकी अगर आप एक सही इंसान के साथ जाके टकराते हैं अपने इमिग्रेशन के लिए, बट इन केस आप, मैं क्या ही बोलूँ फिर. सो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आप देखें, थोड़ा नोटिस करें और सही इंसान के पास जाएं अपनी इमिग्रेशन करवाने के लिए. एंड वंस आप एक उस इंसान के पास पहुंचते हैं, मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ. मैं वहाँ गई और उन्होंने मुझसे बोला कि आप अपना पासपोर्ट मुझे दिखा दीजिए. तो मैंने कहा ठीक है. मैंने अपना बैग रखा और मैंने अपना पासपोर्ट बस उनको दिया. उन्होंने मेरा पासपोर्ट स्टडी किया, उन्होंने मेरा पासपोर्ट पे मेरा नाम देखा, उन्होंने मेरी डिटेल्स देखी, नाम और एड्रेस, मेरा पासपोर्ट ही देखा सिर्फ उन्होंने. एंड उसके बाद वो उठ के चले गए. ऑब्वियसली आई फेल्ट लाइक दैट कि वो उठ के चले गए, बिकॉज व्हाट हैपेंड कि मैंने मेरे कोई डॉक्यूमेंट्स में, मैंने कहा मेरे पासपोर्ट में कोई मिस्टेक तो नहीं है, वो उठ के क्यों चले गए. सो लाइक आफ्टर 5 minutes he came back and he had something in his hand like a paper or something, and what he did was he said keep it. And when I saw it, that was my study permit, and I was so confused that when we saw like हम YouTube videos में देखते हैं, वो कहते हैं हमसे ये पूछा, ये डॉक्यूमेंट्स मांगा, ये डॉक्यूमेंट्स मांगे. तो मुझे था कि अभी तो कुछ मांगा ही नहीं, अभी कैसे स्टडी परमिट दे दिया, अभी कुछ मतलब पूछो तो सही. बट देन आई काम माई सेल्फ, मैंने कहा कोई बात नहीं, कहीं सच में ही पूछने ना लग जाए कि अब ये दिखाओ अब वो दिखाओ. सो आई काम माई सेल्फ एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, स्टडी परमिट मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. मैंने इवन उनसे पूछा अभी, मैंने कहा इज इट डन. सो ही वाज लाइक यस दिस इज डन. आई वाज लाइक ओके एंड आई टुक माई स्टडी परमिट एंड वेंट देयर. बट आप मेरी स्टोरी से ज़्यादा इंस्पायर मत होइएगा. मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ. वहीं पर मुझसे पहले जब मेरी क्यू में स्टार्ट ही हुई थी, तो मेरी क्यू में आगे 10 बच्चे थे. उन 10 बच्चों में से जो फर्स्ट लड़की एक काउंटर पर गई थी, तो एक्चुअली उसने क्या किया था, उसने अपना जो इनटेक था वो मई इनटेक से सितंबर इनटेक में डेफर कराया था. मेरा भी सेम प्रोसीजर था, तो मैं इसलिए उसकी बातें ज़्यादा सुन रही थी. तो ऑफिसर उनसे मांग रहे थे कि आप अपना मई इनटेक का ऑफर लेटर हमें दिखाइए, ताकि हम आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकें और आपको आपका स्टडी परमिट दे सकें. लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग सितंबर इनटेक के लिए जा रहे हैं, तो हमने सारे डॉक्यूमेंट सितंबर इनटेक के ही रखे होते हैं, हम पुराने इनटेक का कोई भी डॉक्यूमेंट अपने साथ नहीं रखते हैं. सो उस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ. उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो उसने अपने सितंबर इनटेक के रखे थे अपने साथ. मई इनटेक का जो ऑफर लेटर था, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, वो उसने नहीं रखा था अपने साथ. एंड बिकॉज ऑफ दैट द ऑफिसर ओवर देयर वाज लाइक कि प्लीज़ मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, एंड इफ़ यू कांट लाइक शो मी योर डॉक्यूमेंट्स, व्हाट वी विल डू इज़ वी विल डिपोर्ट यू. ऑब्वियसली बिकॉज डॉक्यूमेंट्स अगर आपके फुलफिल नहीं होंगे तो उनके पास एक रीज़न है आपको वैलिड कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाए. बट देन ऑब्वियसली शी डिडंट हैड हर मई इनटेक ऑफर लेटर, एंड वो किसी को कॉल भी मिला रही
थी अपना ऑफर लेटर मंगवाने के लिए मई का, बट देन आई डोंट थिंक उनको कोई रिस्पॉन्ड आया. तो एट द एंड लाइक द ऑफिसर वॉज लाइक कि वी नीड टू डिपोर्ट यू बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स विद यू. So obviously she was into the tears and she was crying a lot that please let me go, because obviously जब आप एक 14-15 घंटा की ट्रैवल करके आते हो और आप इतने एक्साइटेड होते हो एक प्लेस पे पहुंचने के लिए जहाँ आपको पता होता है, कुछ लोगों का सपना भी होता है यहाँ तक पहुंचने का. So she was crying a lot and she was too worried about herself, and then obviously she didn't had all her documents with her. So they took her. I don't know where do they kept her और उसके बाद उन्हें documents मिले या नहीं मिले, but for the instance at the first time when we were standing in the queue वो उसे लेके वहाँ से चले गए थे. So moral of the story is carry each and every document with you, each and every document. Even if you think ये important नहीं है, कोई बात नहीं ब्रो, उसे कैरी करो. बिकॉज आपका, मैंने आपको बोला है, आपका जो कैबिन लगेज होता है उसका वेट नहीं होता, और पेपर्स में तो कितना ही वेट होता है यार. एक कपड़ा कम कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक कपड़ा कम पहनोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक डॉक्यूमेंट कम रख लिया तो सब कुछ बिगड़ सकता है. तो इसलिए आप हमेशा अपने छोटे से छोटा डॉक्यूमेंट, आपको लग रहा है ना यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको फिर भी अपने साथ कैरी करके चलो, बिकॉज एट द एंड यू डोंट नो व्हाट कैन दे आस्क फ्रॉम यू, राइट. सो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. उसके बाद बस मैंने अपना ढूंढा अपना टर्मिनल में, मतलब उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. मैंने बस ढूंढा मेरी फ़्लाइट का कौन सा जोन है, क्या है, मैं बस जाके वहाँ बैठ गई. एंड आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. और सिंस मेरी वहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये भी थे कि आपसे टोरंटो पे क्वेश्चंस पूछने के बाद आपसे मॉन्ट्रियल पे क्वेश्चंस पूछे थे कि नहीं पूछे थे. नो ब्रो, नहीं पूछे थे, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट फ़्लाइट थी वो इंटरनेशनल फ़्लाइट थी दिल्ली टू टोरंटो, तो इसलिए मुझसे टोरंटो पे सारे क्वेश्चंस पूछे थे और मुझे मेरा स्टडी परमिट टोरंटो से मिल गया था. उसके बाद जो मेरी फ़्लाइट थी वो डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, तो इसलिए मॉन्ट्रियल पे जो मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे लैंड हुई थी, इसलिए उन्होंने वहाँ मुझसे कुछ नहीं पूछा. वहाँ कोई नहीं था कुछ पूछने के लिए. बस मैंने अपने बैग्स उठाए एंड उसके बाद बस मैं अपने क्वारंटाइन प्लेस पे आ गई थी. वहाँ किसी ने कुछ नहीं पूछा. आपको बस आपका स्टडी परमिट चाहिए होता है, वो आपको वो मिल गया, यू आर गुड टू गो. नेक्स्ट कम्स द लॉट ऑफ योर क्वेश्चंस. आपको आंसर कर देती हूँ. द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कि आप बैग्स कितने कैरी कर सकते हो. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अभी कोरोना के टाइम पे जिन बच्चों की फ़्लाइट 18 मार्च से पहले की बुक हो रखी है एंड इट्स स्टिल पेंडिंग विद एयर कैनेडा और एयर इंडिया और समथिंग, वो लोगों को शायद 2 बैग्स फ्री हैं अभी भी. बट इन केस इफ़ यू आर न्यू एंड अभी आपने फ़्लाइट करवाई है रिसेंटली, तो आपको सिर्फ एक ही बैग मिलेगा 23 kgs का, एंड बाकी के बैग्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा. फर्स्ट बैग के लिए 6000, सेकेंड बैग के लिए 13,200 एंड सो ऑन. बाकी आप जितने भी बैग्स लेते जाएंगे उनके आपके 13,200 पे करने पड़ेंगे. एंड उसके अलावा क्वेश्चन था कि क्या हमारा जो कैबिन बैग है उसका वेट होता है या नहीं होता है. इसका कोई वेट नहीं होता है. आपका जो कैबिन लगेज है, आपका पर्स है, आपका पर्सनल वॉलेट, आपका लैपटॉप, बैग, आप जो भी कैरी कर रहे हैं वो सारा सामान बस आप ट्रे में वहाँ रखते हैं. वो एक सिक्योरिटी प्रोसीजर के अंडर थ्रू होता है एंड उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है. वहाँ आपका कोई वेट नहीं होता है आपके लगेजेस का, तो कैबिन लगेज का कोई इशू नहीं है. उसके बाद एक क्वेश्चन था कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने चाहिए अगर हम लाइक ट्रैवल कर रहे हैं. तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो मैंने कैरी किए थे एंड मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप कैरी करो, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा. एंड उसके बाद क्वेश्चन था कि क्या हमें क्वारंटाइन प्लेस का प्रूफ दिखाना ज़रूरी है. सो ब्रो, मुझसे उन्होंने नहीं मांगा था कोई भी इस तरह का क्वारंटाइन प्लेस का मेरा प्रोसीजर या कुछ, मुझसे उन्होंने नहीं मांगा था मेरे क्वारंटाइन प्लेस का प्रूफ, तो इसलिए मैं लकी निकली. बट स्टिल मैंने अपने साथ जो मेरे कॉलेज ने मुझे सेंड किया था उसका मैंने प्रिंट आउट निकलवा के अपने डॉक्यूमेंट्स में रखा था कि दैट इन केस वो पूछते हैं क्या एड्रेस है, आप कहाँ रह रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, कौन आपको पिकअप करने आने वाला है, ये सारी डिटेल्स है ना, उनके आपके पास डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ्स होने चाहिए दैट इन केस दे आस्क यू आप दिखा दो, नो वरीज. ठीक. उसके अलावा क्वेश्चंस थे कि क्या स्टूडेंट्स को बिना वजह के डिपोर्ट कर देते हैं. सीरियसली नो, नेवर. स्टूडेंट्स को रिपोर्ट सिर्फ 2 ही केसेस में किया जाता है जितना मैंने वहाँ खड़े होकर नोटिस किया. फर्स्ट थिंग, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट की कमी है या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कम है, ऑब्वियसली दिस इज़ अ वैलिड रीज़न. अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके पास वैलिड रीज़न है आपको रिपोर्ट करने का. सो मेक श्योर कि आप अपने साथ अपना हर छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा डॉक्यूमेंट कैरी कर रहे हैं. एंड सेकेंड थिंग, इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश क्लियरली,
बहुत सुनते हैं यार, आज इसको डिपोर्ट कर दिया, उसको डिपोर्ट कर दिया, यूट्यूब वीडियोस बहुत लाइक डराते हैं वो लोग ये बता बता के कि उनको इसलिए डिपोर्ट कर दिया, उसलिए डिपोर्ट कर दिया। ठीक है, कुछ रियल केसेस होंगे उसमें, जेन्युइन केसेस होंगे, बट सीरियसली ब्रदर, नो। अब आप खुद मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर यहाँ एयरपोर्ट पे किसी को डिपोर्ट कर दिया गया है, सपोज लाइक मैं आपको एक इंस्टेंस एग्जांपल बताती हूँ। मेरे साथ एक स्टूडेंट था, ही गॉट 8.5 बैंड्स इन आइल्स, seriously 8.5 bands in IELTS, and he wasn't even able to speak in like a single sentence in English. He wasn't even able to speak a single sentence in English. What he was doing was आपके पास because I was talking to him in English, so I expected to respond him in English also, because I wanted to check whether he knows English or not and what is the disturbance among him and in his mind, and he wasn't even able to speak English properly. अगर आप मुझे बताइए किसी इंसान के 8.5 बैंड आए हुए हैं आइल्स में, और अगर वो एयरपोर्ट पे खड़ा होके एक इंग्लिश में सेंटेंस नहीं बोल पा रहा है, तो क्या ऑफिसर्स के पास ये वैलिड रीज़न नहीं है स्टूडेंट्स को रिपोर्ट करने का? ऑब्वियसली है। और आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर वो इंसान इंडिया आएगा तो वो ये नहीं बताएगा कि मैं वहाँ से इंग्लिश नहीं बोल पाया इसलिए मुझे डिपोर्ट कर दिया। ऑब्वियसली वो कोई फेक रीज़न देगा कि उन्होंने मुझे ऐसे ही डिपोर्ट कर दिया, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं था इसलिए डिपोर्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। वो अपना देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। वो बस अपना स्टेटमेंट कवर करता है, बिकॉज ऑब्वियसली नोबडी कैन शो हिज लाइक नेगेटिव पॉइंट्स टूवर्ड्स एनीवन। लाइक वो नहीं बताएगा कि मेरे से इंग्लिश नहीं बोली गई थी, मुझे इंग्लिश के मीनिंग्स नहीं पता थे, मुझे इंग्लिश की वोकैबुलरी नहीं आ रही थी इसलिए मुझे डिपोर्ट कर दिया। बिकॉज ऑफिसर्स एक्चुअली चांस देते हैं। ही वॉज स्टैंडिंग देयर एंड उन्होंने इंग्लिश में बात की, 2-3 सेंटेंसेज उनसे पूछे, एंड व्हेन ही वॉजंट एबल टू आंसर तो उन्होंने बेसिक वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स पूछ लिए उससे, बहुत ही बेसिक वोकैबुलरी। लाइक आई बिलोंग टू चंडीगढ़, तो उन्होंने जैसे चंडीगढ़ अगर मुझसे पूछे हैं तो वो कहीं से बिलोंग करते हैं, तो उनसे बहुत ही बेसिक ऐसे वर्ड्स पूछ रहे थे स्टेट्स के, लाइक कुछ बता दीजिए। तो पर वो उनको स्पेलिंग्स भी नहीं आ रही थी। तो अब आप ऐसे में बताइए कि उनको कैसे अलाउ कर देंगे कि वो कनाडा में सर्वाइव भी कर सकते हैं? सो ये सब एक अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने साथ अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स कैरी कीजिए, आप अपने साथ अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर वो आपसे कुछ भी पूछते हैं आप उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कीजिए कि हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए सब कुछ। एंड वंस यू आर कॉन्फिडेंट, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और आप थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल सकते हो, यू आर गुड टू गो। नोबडी इज़ गोना स्टॉप यू यार। आपके ड्रीम्स है, आप ये सब पूरा करने के लिए आए हो, आपने इतनी मेहनत की है, डरो मत। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, आपकी आइल्स, तो कोई नहीं रोकेगा आपको, आपका स्टडी परमिट आपको आपके हाथ में मिल जाएगा। तो प्लीज़ डरिए मत एंड इन र्यूमर्स पे बिलीव मत कीजिए। सो चिल गाइस, कोई वरीज वाली बात नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी कीजिए, अपने फेस पे एक स्माइल रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, नो वरीज। आप सब आ जाओ यहाँ पे, सब के सब आ जाओ, नो वरीज, कुछ नहीं होगा। मैं वेट कर रही हूँ आप सब लोगों का यहाँ पे, आप लोग आ जाओ, कुछ नहीं होगा। जस्ट यू आर गुड टू गो, इफ़ यू हैव योर कॉन्फिडेंस यू आर गुड टू गो, नो वरीज। एंड या we'll see you in the next video. Now I'll see you in the next video, and hopefully I find a good topic to talk to you. And if you have some queries, what you can do is you can leave your comment in the comment section below, or you can also ask your queries on my Instagram ID, which is just below there. If you like this video, do give it a thumbs up and do subscribe to my channel also. Till then, bye bye.